નમસ્કાર મિત્રો, રિયલ ન્યૂઝ ચેનલના વિશેષ સ્ટુડિયોમાં ફરી એક વખત આપનું સ્વાગત છે. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ એક વિશેષ કાર્યક્રમ લઈને આપ સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છીએ. મિત્રો, સતત દોડધામ ભરેલા જીવનની અંદર માણસ સતત સફળતાની પાછળ દોડવા માટે આતુર હોય છે, સફળતા મેળવવા માટે ઈચ્છુક હોય છે. દરેક વ્યક્તિને કોઈને પોતાના બિઝનેસમાં, કોઈને પોતાના સંબંધોમાં, તો કોઈને અભ્યાસમાં ક્યાંક ને ક્યાંક સફળતા મેળવવી છે. સફળતા પાછળની આ દોટમાં કેટલીક વખત એવું બનતું હોય છે કે નાની નાની નિષ્ફળતાઓ એક મોટું તણાવ, ડિપ્રેશન ઊભું કરી દેતા હોય છે. અને આવા સમયે અત્યંત તણાવમાં આવી ગયેલ, નિરાશ બનેલ વ્યક્તિ છે એ સફળતાથી ઘણો દૂર થતો જાય છે. કયા કારણો છે કે જે માણસને તાણમાં મૂકી દે છે? અને તાણમાં મુકાયેલ માણસ શું ફરી એક વખત દોડતો બની શકે છે? સફળતા શું ખરેખર મેળવવી આસાન છે? શક્તિ શું વ્યક્તિના શરીરમાં જ છુપાયેલી છે? અનેક પ્રશ્નો વ્યક્તિને ઊભા થતા હોય છે. અને આ પ્રશ્નોનું સરળ નિરાકરણ આજે અમે આપ સૌની સમક્ષ અમારા સ્ટુડિયોથી આપવાના છીએ. આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ છે, સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે આપણા દેશના ખૂબ નામાંકિત અને સૌથી વધુ વ્યસ્ત રહેતા NLP ટ્રેનર શ્રી રામ વર્મા. સ્વાગત છે આપનું. રામ વર્માનો આપ સૌને જો પરિચય આપું તો આપણા દેશના સૌથી વધારે સફળ કહી શકાય અને સૌથી વધારે વ્યસ્ત એવા એ NLP ટ્રેનર છે. લગભગ 5 લાખ જેટલા લોકોને તેઓ NLPની ટ્રેનિંગ આપી ચૂક્યા છે. આ સાથે મોટી મોટી કંપનીઝ, ઉદ્યોગપતિઓ, ખેલાડીઓ, આ સાથે બીમાર લોકોને પણ તેઓ NLPની ટ્રેનિંગ આપે છે અને અનેક લોકોને પોતાની જે ધારેલી સફળતાઓ છે, પોતે જે ધારેલી ઈચ્છાઓ છે એમાં આગળ વધારે છે. NLP બિઝનેસમાં કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે, NLP અભ્યાસમાં કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે, આ સાથે NLP ધનવાન બનવામાં કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે, આ બધી જ વાતોને ખૂબ સરસ રીતે પોતાના સતત યોજાતા વર્કશોપ્સ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને લોકોને અવનવા સફળતાના શિખરો સર કરાવે છે. શ્રી રામ વર્મા સાહેબના પુસ્તકો ગુજરાતીમાં પણ આવ્યા છે. રિચાર્જ યોર લાઈફ અને ઇફેક્ટિવ પેરેન્ટિંગ, જે પેરેન્ટિંગ પર છે, અને સ્પોર્ટ્સ NLP, કે જે ખેલાડીઓ પોતાના જીવનમાં NLPનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકે એ વિષય પર આધારિત છે. આ સાથે ધનવાન બનવા માટે સબકોન્શિયસ માઇન્ડનો ઉપયોગ કરીને 21 જેટલા સૂત્રો તેમણે તૈયાર કરેલા છે, 21 જેટલા પ્રશ્નાવલી છે અને એની મદદથી કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ઊંચા શિખરો સુધી પહોંચી શકવા માટે સક્ષમ બને છે. અને દર વર્ષે લગભગ 2000થી વધારે લોકોને તેઓ ફ્રી ઓફ ટ્રેનિંગ આપે છે, વર્કશોપના આયોજન કરે છે જુદા જુદા શહેરોમાં, અને લોકો તણાવમુક્ત કઈ રીતે બને, પોતાના જીવનને સુખી કઈ રીતે બનાવી શકે, એ બધી જ વાતો પર ધ્યાન આપતા રહે છે. હાલમાં શ્રી રામ વર્મા સુરતના મહેમાન છે અને આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. આપના મનમાં પણ અનેક પ્રશ્નો ઊભા થતા હશે. આજે શ્રી राम वर्मा આ બધા જ પ્રશ્નોના जवाब અહીંથી આપવાના છે. फिर एक वक्त फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे रियल न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में और शुरू करते हैं बातें. सबसे पहले मैं अभी बातें कर रहा था गुजराती में, शायद आपने कुछ समझी हो. तो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सफलता के वांछुक रहते हैं. तो एग्जैक्टली जब NLP नाम आता है तो NLP क्या है? सबसे पहले मन में यही क्वेश्चन लोगों के मन में आया होगा. तो प्लीज़ बताइए NLP क्या है? देखिए, जहाँ तक NLP का सवाल है, इसमें 3 लेटर हैं NLP जी. N स्टैंड्स फॉर न्यूरो, N बनता है न्यूरो के लिए. न्यूरो का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, किस तरह हम चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने अंदर उनकी छवियाँ बनाते हैं, किस तरह से हम और विभिन्न घटनाओं को लेते हैं लाइफ में. कई बार कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं. कई बार कुछ घटना इतनी खराब होती है कि हमें डिप्रेस कर देती हैं. कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो हमारा मस्तिष्क चीज़ों को कैसे परसीव करता है, यानी कि ग्रहण करता है, ये न्यूरो में सिखाते हैं. न्यूरो मीन्स मस्तिष्क. लिंग्विस्टिक का मतलब है कि जो भी चीज़ हमने ग्रहण की है, जो चीज़ हमारे मस्तिष्क ने सीखी है, वो किस तरह से हमारी भाषा को तब्दील कर देती है, बदल देती है. भाषा का मतलब ये नहीं कि जो शब्द हम बोलते हैं, भाषा का मतलब है कि कैसे हमारा दिल धड़कता है, किस तरह से कोई भी घटना हमारे शरीर को बीमार कर देती है, कई बार तनाव कर देती है, सर में दर्द है, माइग्रेन है. लोगों को जितनी भी बीमारियां हैं वो सब साइकोसोमेटिक है. साइकोसोमेटिक का मतलब है कि जो इश्यू पड़ा है, जो मसला पड़ा है, वो हमारे अवचेतन मन में पड़ा है, मस्तिष्क में पड़ा है, और उसका अनुभव जो हो रहा है वो हमारे शरीर में हो रहा है. इसी अनुभव को हम
शारीरिक लैंग्वेज भी कहते हैं, भाषा कहते हैं। और तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग, कि किस तरह से ये चीज़ें जो हमारे बिहेवियर में आ गई हैं, बर्ताव में आ गई हैं, शरीर में आ गई हैं, कैसे ये डीपली या गहरे तौर पर प्रोग्राम हो जाती हैं। अब एनएलपी में हम यही सिखाते हैं कि एक न्यूरो अपने मस्तिष्क को कैसे चलाएं, लिंग्विस्टिक कैसे अपनी जो भी हमारी व्यवहार बने हैं, बर्ताव बने हैं, एक्शन बने हैं, उनको कैसे बदलें, प्रोग्रामिंग, और जो भी चीज़ ऐसी बन गई है जो प्रोग्रामिंग हो गई है गलत तरीके से, उसे हम कैसे डी प्रोग्राम करें, दोबारा उसको कैसे वहाँ से हटाएं। डिप्रेशन के पैटर्न है, बीमारी के पैटर्न है, एंग्जाइटी के पैटर्न है, गुस्से के पैटर्न है, इनको हम कैसे हटाएं, ये एनएलपी है। इसकी शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। 2 जीनियस लोगों ने अमेरिका में से शुरुआत की थी, और अब करीब करीब पूरी दुनिया में, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, बिजनेसमैन हों, स्टूडेंट्स हों, सभी लोग एनएलपी से अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर ला रहे हैं। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है वो सफलता की ओर हमें ले जाती है, तो आजकल जो बातें चलती है हमारे जागृत और अजागृत मन, यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन अवचेतन मन के बारे में काफ़ी बातें चलती हैं। तो आप हमें बताएं कि चेतन और अवचेतन मन एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके सामने, प्लीज़। देखिए, कई बार ऐसा लगता है हमें कि चेतन और अवचेतन मन ये बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, ऐसा लगता है। कई बार कुछ किताबें हम पढ़ते हैं, फिर ऐसा लगता है कि ये शायद दोनों शब्द कुछ खास लोगों के लिए बने। जब मैंने अपनी शुरुआत करी एनएलपी सिखाने की, तो मैंने स्टूडेंट्स को सबसे पहले लिया, और मेरे सामने ये चुनौती थी कि मैं चीज़ों को इतना सिंपल बनाऊं कि वो तीसरी क्लास का स्टूडेंट भी समझ ले। इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को मैंने इतना सिंपल बनाया। जहाँ तक चेतन और अवचेतन की बात है, तो मैं 1 मिनट में आपको इसे क्लियर करना चाहूँगा। जब आप मुझे खुली आंखों से देख रहे हैं, तो आप चेतन मन की आंखों से, यानी कि विजुअल से मुझे देख रहे हैं। इसी तरह से जब आप मुझे कानों से सुन रहे हैं, तो आप चेतना के कानों से, यानी कि कॉन्शियस जागृत ऑडियोज़ आपके पास हैं, ध्वनि आपके पास है। जब आप यहाँ बैठे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आपके घर में इस वक्त गर्मी कितनी है, ठंड कितनी है, आपका हाथ कहाँ रखा है, वो सब आपको फीलिंग आ रही है। ये आपकी जागृत मन की फीलिंग है। लेकिन अगर आप आंखें खोले या बंद करें, फिर भी आप अपने घर के दरवाजे को देख सकते हैं, टीवी कहाँ रखा है ये देख सकते हैं, अपने घर के लोगों के चेहरे आपको याद आ जाएंगे। जबकि जागृत मन के सामने कुछ और हो सकता है। आप टीवी देख रहे हैं, ये आपकी जागृत आंखें हैं, लेकिन इन आंखों के परे भी आपको कुछ न कुछ आभास हो रहा है विजुअल्स का। आपके फ्रिज का कलर कैसा है, आपका बाथरूम कहाँ है, आपका ड्राइंग रूम कहाँ है, ड्राइंग रूम का कलर कहाँ, उसमें खिड़कियाँ कहाँ हैं, ये अवचेतन मन के विजुअल्स हैं। इसी तरह से अवचेतन मन की ऑडियोज़ हैं। आपके लोग, आपके घर के लोग कैसे हेलो बोलते हैं, कैसे वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं, कैसे उनकी हंसी है, ये सब आप अभी भी सुन सकते हैं। इसे हम अवचेतन मन की ऑडियो कहेंगे। और इसी तरह से कुछ फीलिंग्स भी हैं। जब आपके घर में बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ था, तो वो फीलिंग्स आपके साथ अभी भी पड़ी हैं। आपको नुकसान बड़ा हुआ, वो फीलिंग्स भी आपके पास पड़ी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जहाँ तक आता है आम आदमी को, वो उन्हें ये समझना चाहिए कि जिन चीज़ों की आपको जागृत मन को जानकारी है, जरूरी नहीं है कि वो आपके अवचेतन मन को भी जानकारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हो सकता है तैरना ना जानते हो, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 4-5 चीज़ें आप कर लें तैरने के लिए, पानी में कूदिए, हाथ पैर मारिए, सांस लेते रहिए, फ्लोट करिए, आगे को फेंकिए अपने आप को, और ये 5 तरीके तैरने के हैं। क्या इन तरीकों को अगर मैं अब सिखा दूँ, तो क्या आप तैरना सीख जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि तैरना आपके कॉन्शियस माइंड, यानी कि जागृत मन ने तो सीख लिया है, लेकिन जो अर्ध जागृत मन है, यानी कि अवचेतन मन है, उसने नहीं सीखा है। जबकि जितनी भी एबिलिटी है आपकी, जितनी भी योग्यता है, और उस योग्यता को जितना भी आप कार्यान्वित करेंगे, उसकी कंट्रोल सारी की सारी अवचेतन मन के पास है, या अधिकांश अवचेतन मन के पास है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन चीज़ों की जानकारी या जिन चीज़ों का पैटर्न या जिन चीज़ों की प्रोग्रामिंग अवचेतन मन को हो गई है, जरूरी नहीं है उसकी जानकारी आपके चेतन मन को भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, हमारे अंदर ये आदतें कहाँ से बन गई, अनवांटेड बिहेवियर कहाँ से आ गए, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हमारी हड्डियाँ कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी मसल्स में पेन होने लगा, ये अवचेतन मन के पैटर्न है। पर ज़रूरी नहीं है कि चेतन मन इनको जानता हो। यही 2 बड़े चैलेंज हैं। इन्हीं चैलेंज को के जो गैप है, यही हमारा दर्द है, यही हमारा डिप्रेशन है। हम चाहते हैं चेतन मन से कि पैसा कमाएं, पर अवचेतन मन को इसकी जानकारी नहीं है, हमें उत्साह नहीं मिलता थोड़े दिन के बाद। हमारे बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छे मार्क्स ले, लेकिन अवचेतन मन को नहीं जानकारी।
यही सबसे बड़े चैलेंज है। एनएलपी इसी बैच को, इसी गैप को ब्रिज करने के लिए बनी है। जी सर, जब जागृत और अर्ध जागृत मन की बात आती है तो ऐसा सुना गया है कि ऐसा कहा जाता है कि जागृत मन जो अर्ध जागृत मन को बताता है, यानी जागृत मन है वो मालिक है और अर्ध जागृत मन है वो उसका गुलाम है। जो मालिक बताता है वही गुलाम करता है। तो ये चीज़ें क्या सही है? इसी तरह से अर्ध जागृत मन काम करता है, अवचेतन मन काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप ये समझिए, इसे और सिंपल कर देते हैं जी। कि आपके पास एक घोड़ा है जिसके पास सारी ताकत है कि वो आपको कहीं भी ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से सूरत से नवसारी, सूरत से वापस जा सकते हैं अपने घोड़े पर बैठकर। जी। सो घोड़ा है आपका अवचेतन मन, अर्ध जागृत मन। जी। जहाँ तक घुड़सवार का सवाल है वो है जागृत मन, यानी कि वो मालिक है। सवाल इस बात का है कि जागृत मन को पता होना चाहिए, नंबर एक, कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और नंबर एक कि मुझे जाना कहाँ है, ये जागृत मन को पता होना चाहिए। जी। मीन्स मुझे क्या करना लाइफ में, मेरा सेहत कितनी होनी चाहिए, मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरी शुगर कितनी होनी चाहिए, मेरे कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, मेरे पास पैसा कितना होना चाहिए, मैं कितने किस तरह से मैं अपनी लाइफ को आगे ले जाऊं, ये जागृत मन को जानकारी होनी चाहिए। जी। इस इतनी सी जानकारी से काम नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि ये जागृत मन की जानकारी आप अपने घोड़े तक भी ले जाएं। अब दूसरी बात है कि आपको अपना घोड़ा ट्रेंड करना आना चाहिए। यही है खास बात। गड़बड़ ये हो गई कि लोगों को ये तो जानकारी है कि मुझे यहाँ से नवसारी जाना है, पर आपने अगर अपने घोड़े को ट्रेंड नहीं किया, घोड़े के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, घोड़े को नहीं पता है कि यहाँ से आपको दूसरे शहर जाना है, तो आप वहीं खड़े हैं और आप एक इंटेलिजेंट स्टूपिड कई बार लोग हो जाते हैं कि वो, उन्हें मालूम सब कुछ है कि उन्हें जाना कहाँ है, पर वो जा नहीं रहे हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि जागृत मन उसका एक मालिक है, लेकिन उस मालिक को पूरी तरह से पता होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करें, सो दैट ताकि आपका अवचेतन मन पूरी तरह से अपनी सारी की सारी शक्तियों को यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज करके एक रूपता में लाके आपकी हेल्प करे। जी। हर एक आदमी को सफलता चाहिए, चाहे बिजनेस पर्सन हो, स्टूडेंट हो, बीमार व्यक्ति को अपनी सेहत अच्छी चाहिए। तो आदमी लगातार दौड़ता रहता है, भागता रहता है, मान लीजिए सफलता की तो, और कभी कभी वो जब सफल नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, फिर और कई रोग भी आ जाते हैं, उनको साथ में ले आते हैं, तो तनाव आ जाता है, असफलता जैसी चुनौतियाँ सब आ जाती है। तो इसमें एनएलपी किस तरह से हेल्पफुल रहती है? यस, एक्चुअली एनएलपी को हम पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि उच्चतम बिंदु तक आप अपनी परफॉर्मेंस को ले जाएं। जब हम अपनी सफलता के लिए काम करें तो कुछ चीज़ें हैं। एक, आपको आपके जागृत मन को पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य क्या हैं। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके अर्ध जागृत मन को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी इकोलॉजी बैलेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप ये समझिए कि कोई भी आंतरिक द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जब हम बीमारी की बात करते हैं, जब हम असफलता की बात करते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ये 3 जगह पर आपके इशू पड़े हुए हैं। जब भी कोई बीमारी हमें आती है तो 3 जगह पर वो मसले पड़े हो सकते हैं अर्ध चेतन मन में। नंबर 1, या तो कोई पास्ट की मेमोरी हो सकती है, पास्ट का रेफरेंस हो सकता है, पास्ट का कोई फियर हो सकता है, यानी कि भूतकाल का कोई डर हो सकता है। भूतकाल के यकीन हमें पढ़ाए जाते हैं जीवन भर, भूतकाल के हमारे पास अनुभव होते हैं। और अगर भूतकाल के अनुभव हमारे मन के अंदर भरे पड़े हैं, मस्तिष्क के अंदर भरे पड़े हैं, भूतकाल के डर हमारे अंदर भरे पड़े हैं, तो सबसे पहला ये बहुत बड़ा इशू है। हम कभी भी अपने जूते में कंकड़ को रख कर मैराथन नहीं दौड़ सकते, या मैं कहीं बंधा हुआ हूँ या मेरा पैर कटा हुआ है तो मैं कभी भी फिर मैराथन नहीं दौड़ सकता। तो पहला इशू है कि जब भी असफलता या कभी भी बीमारी की बात करेंगे तो आप अपने मन से पास्ट की मेमोरी जितनी भी पेनफुल हैं उन्हें हटाना सीखेंगे। और वो सिर्फ इतने कहने से नहीं होगा कि चलो मैं उन्हें भूल जाना चाहिए से काम नहीं चलेगा। एनएलपी आपको एक टेक्निक बताएगी कि कैसे उन विजुअल्स को जो पड़े हुए हैं, उन ध्वनियों को, उन फीलिंग्स को वहाँ से हटाया जाए और आप अपने अंदर पड़े हुए गार्बेज को ख़त्म करें। दूसरा बड़ा मसला आता है कि कई बार वर्तमान की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हमें घेर लेती हैं। हमें लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से छोटा हूँ। इसको हम सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम कहते हैं। जब मुझे लगता है कि मेरी इमेज या मेरा अपना जो आकार है वो प्रॉब्लम से छोटा है। कई बार लोग कहते हैं कि आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, में एक बड़ी समस्या में हूँ। तो मैं हूँ का ये शब्द समझिए कि वो अपने आकार को फंसा हुआ पाते हैं, अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं उस इश्यू में। वो पैसे का हो सकता है, वो रिसेशन का हो सकता है।
तीसरी बड़ी चुनौती आदमी के पास ये है कि किस तरह से आप अपने फ्यूचर को देखते हैं। कई बार आपके पास्ट की रेफरेंस या पास्ट के अनुभव या वर्तमान की परिस्थितियां ये आपको बता देते हैं कि आप अपने वर्तमान को, आप अपने फ्यूचर को यानी कि भविष्य को पूरी तरह से रंगीन या निश्चित नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में लोग कई बार कहते हैं कि मेरा भविष्य अंधकार में है। सो ये तीन मसले बड़े हैं आपके मस्तिष्क के अंदर। एक, पास्ट के कोई ना कोई आपकी गड़बड़ है, या वर्तमान की कोई परिस्थितियां हैं, या आप अपने फ्यूचर को आंतरिक रूप से, यद्यपि आपकी आंखें खुली हैं पर आपका मस्तिष्क अपने भविष्य को नहीं देख पा रहा है। एनएलपी इन तीनों जगह काम करती है। आपको आपके पास्ट के इश्यूज से, पास्ट के मसलों से, भूतकाल के मसलों से आपका पीछा छुड़ाएगी, जहाँ से आपको एक चेन से आप हटेंगे जहाँ पर बंधे हुए हैं। आपकी वर्तमान में आपकी जो इनर सेल्फ इमेज है, स्वयं की जो छवि है, उसे बड़ा करने का मौका मिलेगा। और तीसरा, आपके अंदर वो विजुअलाइजेशंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू उन पैटर्न्स को डाला जाएगा, उन तरीकों को डाला जाएगा कि आपका मस्तिष्क भविष्य को एक बार फिर रंगीन देखना शुरू कर दे। जी सर, आपने बताया कि सफलता के लिए एक तकनीक होनी ज़रूरी है, एनएलपी वो तकनीक देती है। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसी कोई तकनीक आप बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से वो तकनीक का उपयोग करके वो भी आगे बढ़ पाए और सफल बन पाए? हाँ, क्यों नहीं जी। क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी तकनीक आपको बता रहा हूँ जी। आप कभी लोगों के आंखों पर ध्यान दीजिएगा। वो जब भी अपने भूतकाल की बातें करेंगे और उनकी यादें करेंगे तो उनकी आंखें यूजुअली ऊपर की तरफ, बाईं तरफ जाएंगी। और जब भी वो कोई भी भविष्य की कल्पना करेंगे, उनकी आंखें यूजुअली, साधारणतया दाहिनी तरफ जाएंगी। हमारा मस्तिष्क जब भी याद करता है किसी भी चीज़ को, वो अपनी मेमोरी को ऊपर की तरफ, बाईं तरफ डालता है। और आप जितनी भी भविष्य की कल्पनाएं हैं, भविष्य के जितने भी लक्ष्य हैं, उन्हें वो ऊपर की तरफ, राइट की तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है। ऐसे ही जब भी लोगों को आप देखेंगे कि जब वो बात करते हो, कुछ लोग नीचे की तरफ देखते हैं, उनकी लेफ्ट डाउन जाएगी आंखें, और जब वो लेफ्ट डाउन जाते हैं तो उनके आंतरिक डायलॉग शुरू हो जाते हैं। और जब वो किसी भी चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उनकी आंखें दाहिनी तरफ, नीचे की तरफ जाती हैं। इसी चीज़ को अगर आप प्रयोग कर लें, सपोज आप एक लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, आप एक शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं, आपका वेट कितना होना चाहिए, उसमें आप कैसे दिखने चाहिए, आप एक स्टूडेंट है, आप 95% चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक और फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप एक किसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप एक कार खरीदना चाहते हैं, एक मकान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप अपनी आंखों को दाहिनी तरफ ले जाकर ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर देखते हुए आप उस लक्ष्य की इमेज को बनाएंगे, उस इमेज को कलरफुल बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, चलता फिरता बनाएंगे, मूवी लाएंगे उसमें, उस पिक्चर को पैनोरमिक यानी कि उसमें कोई फ्रेम ना हो, और कोशिश करेंगे कि वो 3 डायमेंशनल देखें, ऐसा देखें बिल्कुल लाइव हैं। इसे देखते हुए जब आपके पिक्चर पूरी तरह से आप उससे संतुष्ट हो, फिर आप अपनी आंखों को नीचे की तरफ बाईं ओर ले जाएंगे। और अब आप इंटरनल डायलॉग, आंतरिक संवाद करेंगे अपने साथ, वाह मैंने ये पूरा कर लिया है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। लोगों की बातें सुनेंगे कि किस तरह से उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद कुछ खास लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको सुनेंगे। जब आप इन शब्दों से भी संतुष्ट हो जाएं, फिर आप अपनी आंखें दाहिनी तरफ नीचे की ओर ले जाएंगे और जो भी पिक्चर और इन संवादों से आपकी फीलिंग्स आई है उनको जिएंगे। इन फीलिंग्स को पूरी तरह से महसूस करेंगे, मानो ये फीलिंग्स पूरे शरीर में आपके सांसों के साथ, कंधों के आसपास, हृदय के आसपास, पूरे शरीर में फैल रही हूँ। इनको एंजॉय करते हुए, इनका अनुभव करते हुए एक बार फिर इसे दोहराएंगे। एक बार फिर अपनी आंखें ऊपर की ओर दाहिनी तरफ देखिए, उस लक्ष्य को देखिए। आप एक बड़ी कार चाहते हैं, आप स्कूल को टॉप करना चाहते हैं, आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप सेहत बनाना, जो भी आपका विजुअल है। अब आप विजुअल को ऊपर देखते हुए फीलिंग्स भी अब आपकी आएंगी, उन विजुअल्स को और बढ़िया करिए, इस बार और बढ़िया करिए, मानो आप एक फिल्म डायरेक्टर हो। फिर उन संवादों को भी सुनिए, ऊपर की तरफ रखिए ना आंखें, फीलिंग भी आएगी, अब उसे नहीं रोक पाएंगे। ऐसा करने के बाद फिर आपकी संतुष्टि जब आप पूरी हो जाए, फिर आप बाईं तरफ अपनी आंखों को ले जाएं, बाईं तरफ ले जाकर नीचे की तरफ देखें और यहाँ पर आप एक आंतरिक डायलॉग को दोबारा सुने।
आंतरिक संवाद को। उस संवाद के में आप कुछ खास लोगों को सुने कि आपके घर के लोग कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, प्रशंसा कर रहे होंगे जी। इस प्रशंसा को सुनिए और उस तरह से फिर दाहिनी तरफ फील भी करिए और उसे 3-4-5 बार कर लिए, आज ही कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क उस लक्ष्य के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुका है। अब यह मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग, ये ध्वनि, ये जितने भी विजुअल्स हैं ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प कर रहे होंगे और आपको नया मोटिवेशन और उत्साह दे रहे होंगे। जी सर, एक एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे 91% चाहिए अपनी अगली एग्जाम्स में, तो किस तरह से आपने जो तकनीक बताई, एग्जैक्टली कौन से ऐसे डायलॉग्स होंगे, कौन सी फीलिंग्स होगी जो एक स्टूडेंट कर पाएगा? बहुत आसान है जी, ये बहुत आसान है जी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपके साथ एक और एक्सरसाइज भी आपको सिखा सकता हूं जी। सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि 91%, 91 और परसेंटेज का जो सिग्नल है या साइंस हैं या जो विजुअल्स हैं उन्हें आप उसी तरह से आप दाहिनी तरफ ले जाइए, आंखों को ऊपर करिए और इमेजिन करिए कि वहाँ पर आप हैं और आप अपनी पिक्चर को बनाइए कि कैसे आप अपने आप को देखेंगे जब आप 91% बनेंगे। जी। उन विजुअल्स को देखिएगा, कहाँ पर आप देख रहे होंगे अपने आप को। कोई बढ़िया सा स्कूल का प्लेटफॉर्म है, प्रिंसिपल का ऑफिस है, जहाँ पर आप अचीव कर चुके हैं, मानो आप पूरी तरह से उसे अचीव कर चुके हैं। इस विजुअल को बनाइए। 91% प्राप्त करने के बाद आप कैसे दिखेंगे, कहाँ पर दिखेंगे, किन लोगों के साथ दिखना चाहते हैं, उनकी विजुअल्स बनाइए। इन विजुअल्स को खूब बड़ा करिए, कलरफुल करिए, 3 डायमेंशनल करिए। अब अपनी आंखों को बाईं तरफ नीचे की तरफ देखिए और एक इंटरनल डायलॉग इमेजिन करिए कि क्या करेंगे। वाओ, आई हैव अचीव्ड इट, मैंने इसे अचीव कर लिया है। आई एम ए टॉपर, आई एम ए गुड स्टूडेंट। इमेजिन करिए आपकी मदर किस तरह से आपके लिए खुश हो रही होगी, वो आपसे क्या कह रही होगी, यू आर द हीरो ऑफ माई लाइफ। आप मेरे जीवन के एक हीरो हैं, नायक हैं। आपकी सिस्टर, आपके फादर किस तरह से आपके बारे में बोल रहे होंगे, किस तरह की आप लैंग्वेज सुनना चाहेंगे अपने टीचर से, फ्रेंड से। उन डायलॉग को अभी सुनना शुरू करिए। जैसे जैसे ये डायलॉग आप सुनेंगे और जब आप डायलॉग में संतुष्ट हो जाएं, अब आप फील भी कर रहे होंगे नई फीलिंग्स। इन फीलिंग्स को ले जाए, अब आप महसूस करिए और आंखों को दाईं तरफ नीचे की ओर देखिएगा। इस तरह से आपका पहला साइकिल पूरा हो गया। याद रखिएगा, आपके सबकॉन्शियस की पावर जितने भी है वो आपके विजुअल्स में है और आपकी साउंड में यानी कि ध्वनि में है और आपकी फीलिंग्स में है। इनमें कोई भी चीज़ कमज़ोर अगर रह जाएगी तो आपका विजुअलाइजेशन नहीं होगा। इसके लिए आप इसी तरह से करिए। एक और एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ अपने छात्रों को। सूरत के छात्र या साउथ गुजरात के छात्र बहुत ही पढ़ाई के लिए हमेशा सीरियस हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। उनके लिए मैं एक और एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि आप इमेजिन करेंगे कि आप बैठे हुए हैं और थोड़ी दूरी पर आप अपने आप को अपने सामने देखते हैं। सामने देखिए, कोई बढ़िया सा पार्क है या बढ़िया सा बीच है। थोड़ी दूर पर आप अपने आप को देखेंगे, इसे हम दूसरा आप कहेंगे। और इमेजिन करिए कि दूसरा आप सीख चुका है कि कैसे वो अपने लक्ष्यों को पूरा करे। उसे लक्ष्यों को पूरा करे हुए देखेगा। वह 91% या 95% प्राप्त कर चुका है, उसे अवार्ड मिल चुका है। उसके आने वाले उसके बेनिफिट क्या होंगे, ध्वनि क्या होगी, लोग कैसे अप्रिशिएट कर रहे होंगे, कैसे लोग उसे गले लगा रहे होंगे, अगले 5 साल में उसे क्या फ़ायदा होगा अगर वो इस तरह से अपने परसेंटेज को बढ़ा ले। इन विजुअल्स को गाढ़ा करें, बड़ा करें, क्लियर करें और एक इमेजिन करेंगे कि आप सामने से दूसरा आप आपकी तरफ आ रहे हैं हंसते हुए, वो आप ही हैं और इधर से आप भी अपने दूसरे आपकी तरफ जा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि आपने उसको गले लगाकर अपने अंदर पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है, उतार लिया है, समा लिया है और आप उस अदर यू की फीलिंग्स को, उन पिक्चर्स को पूरी तरह से जीना शुरू करें आंखें बंद करके। इसे 15-20 बार करिएगा। आपका अवचेतन मन सीख चुका होगा, उसे पहले से यकीन आ जाएगा कि आप उस तरह के स्टूडेंट हैं जो अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। जी, कभी कभी सर जब NLP का उपयोग करके एक इंसान है अपनी तरफ से एक प्रोग्राम बना लेता है और फिर बार बार उसे ये तकनीक का उपयोग करता है, तो उसकी जो साइंटिफिकल इफ़ेक्ट है वो क्या रहती है कि एग्जैक्टली उसका अवचेतन मन है सक्रिय हो जाता है? उसके बारे में आप डिटेल बताएंगे, कौन सी ये मनोवैज्ञानिक स्थिति बनती है? जब भी आपके पास अपने लक्ष्यों की पूरी विजुअल्स क्लियर हो जाए जी,
आपकी ऑडियोस यानी कि ध्वनि क्लियर हो जाए और आप उनसे जुड़ी हुई फीलिंग्स को एंजॉय करने लगें। जी। आपके मन और शरीर के लिए यह एक रियल यानी कि वास्तविक स्थिति हो जाती है। हमारा मन कभी भी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना और वास्तविकता में फ़र्क करना नहीं जानता। अगर आप किसी भी चीज़ को एनएलपी के द्वारा विजुअलाइज कर लें, एनएलपी के द्वारा अगर आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज कर लें तो साइंटिफिकली आपकी बॉडी और आपका माइंड उसे एक रियलिटी, उसे एक वास्तविकता मान लेता है और वास्तविकता से आई हुई फीलिंग्स की तरह ही उसे ट्रीट करता है, उसको वो फॉलो करता है। जब भी आप किसी भी लक्ष्य को इस तरह से जोड़ते हैं अपने लिए, आप धनवान बनना चाहते हैं, आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपनी बीमारियों को हटाना चाहते हैं और बीमारियों की जगह स्वास्थ्य को डालना चाहते हैं, तो आप एनएलपी की इसी तकनीक का प्रयोग करें और आप खुद देखेंगे कि आपको वो अवसर मिलने शुरू हो गए, वो लोग मिलना शुरू हो गए, वो तरीके मिलने शुरू हो गए कि किस तरह से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसे हम 100th मंकी सिंड्रोम भी कहते हैं, 100वें बंदर का लक्षण। जापान की एक टेक्निक है, जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने कुछ बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था 1950 में। ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, कभी मेरे साथ जुड़कर सुनिएगा इसको। इसका सिंपल तरीका ये है कि जो भी विजुअल आप डाल लें और उसके साथ ध्वनि और इन दोनों के साथ अगर आप फील भी कर लें तो ये साइंटिफिकली आपको आपके लक्ष्यों तक लेकर जाएगा, वो भी बगैर प्रयास के। जी। काफ़ी लोग विजुअलाइजेशन अपना चुके हैं और विजुअलाइजेशन से वो सफलता की ओर दौड़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग विजुअलाइजेशन में सफल भी हुए हैं, मगर कई लोग हैं वो अटक जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तकनीक काम नहीं कर रही है। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, और जब विजुअलाइजेशन की बात हो और एनएलपी की बात हो तो दोनों में क्या अंतर है, ये भी आप कृपया बताएं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग विजुअलाइज कर रहे हैं और वो कितने सीरियस हैं अपनी सफलता के लिए, अपनी सेहत के लिए, रिश्तों के लिए। जी। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ इसमें हो जाती है। गड़बड़ ये है कि जहाँ विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो आप इस शब्द को ही पकड़िए। इस शब्द में एक वर्ड है विजुअल एंड इमेजिनेशन, यानी कि आपकी कल्पना में जो विजुअल्स आ गए उन्हें हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत पुरानी बात हो गई। अगर आप मेरे साथ जुड़ें तो आप खुद मानेंगे कि आज हम राइट ब्रदर्स ने जो हवाई जहाज़ बनाया था, आज हम उस हवाई जहाज़ में नहीं बैठते, आज हम एयरबस में, जंबो में बैठते हैं। जेम्स वाट ने जो ट्रेन बनाई थी, हम भाप की ट्रेन या स्टीम ट्रेन, हम उसमें नहीं बैठते, आज हम मेट्रोज में बैठते हैं, बुलेट ट्रेन में बैठते हैं। उसी तरह से आपको ये भी समझना चाहिए कि आज मॉडर्न साइकोलॉजी बहुत इवॉल्व हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी नई खोज हो चुकी हैं। अगर आज भी आप विजुअलाइजेशन को विजुअल्स के थ्रू ही लें तो ये अधूरा होगा। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो कुछ लोगों का होता है डिफ़ॉल्ट, मैं बताता हूँ क्यों, कैसे हो जाता है और कैसे हो सकता है। जब हमारा अवचेतन मन जो को अगर आप उसकी पोटेंशियल शक्ति को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो अवचेतन मन के पास 3 चीज़ें हैं। एक है विजुअल्स, एक है आपकी ध्वनि ऑडियोज, एंड एक है काइनेस्थीसिया यानी कि आपकी फीलिंग्स। अगर ये तीनों पूरी तरह से नहीं पड़ी हैं तो ये विजुअलाइजेशन नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ शब्दों में विजुअलाइजेशन कराते हैं, दैट मैं कहता रहूँ आई एम रिच, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, और ये शब्द गए हैं सिर्फ। जरूरी नहीं कि इसके साथ पिक्चर बनी हो या फीलिंग आई हो। कई बार ये फीलिंग उल्टी भी जाती है, एकदम से मेरा भी मन कह रहा है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, धनवान तो कोई और है, तुम धनवान नहीं हो। या मैं बीमार हूँ तो मैं कहूँ मैं स्वस्थ हूँ, तो एकदम से मन का एक ही पार्ट कहेगा नहीं ये झूठ है। आप खुद भी सोचिएगा कि जब आप किसी आदमी से मिलते हैं 10 साल बाद या 5 साल बाद, कई बार आप उससे कहते हैं यार मैं आपका चेहरा तो याद रखता हूँ, मुझे आपका चेहरा तो याद आ गया कि आप मेरे साथ कहाँ मिले थे, पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है नाम। पता है आप नाम क्यों भूले? क्योंकि नाम आपके मन के अंदर इमेजिनेशन में आपका उसका नाम जो था वो साउंड में पड़ा था, और साउंड सबसे कमज़ोर होती है। उसके बाद कई बार आप लोगों का चेहरा भी भूल जाते हैं, यानी कि विजुअल्स को भी भूल जाते हैं 20-30-40 सालों में तो। लेकिन आप एक चीज़ कभी नहीं भूलते, वो है काइनेस्थीसिया यानी कि फीलिंग, यानी कि जो चीज़ आपकी मसल्स ने सीख ली है, फीलिंग्स में जो आ गई है। जैसे आप अगर साइकिल चलाना एक बार सीख जाएं तो 50 साल बाद भी आप साइकिल चला सकते हैं। आप थकेंगे नहीं थकेंगे वो अलग बात है, वो पैटर्न मसल्स के हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब भी आप विजुअलाइज करें तो आपकी फीलिंग्स की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, ये देखने लायक होगी।
अगर फीलिंग नहीं बनी है तो याद रखिएगा ये इमेजिनेशन अधूरा है और ये इमेजिनेशन हुआ ही नहीं है, और ये विजुअलाइजेशन आपको असफल कर देगा और आपको कई बार खुद के ऊपर गुस्सा आएगा, यार मेरे साथ कैसा हो रहा है। सो जब भी आप विजुअलाइज करें, इमेजिनेशन में विजुअल से स्ट्रॉन्ग हो, 3 डायमेंशन में हो, कलरफुल हो, मूवी में हो, कभी भी फ्रेम्ड ना हो, ऑडियोज बहुत ही सिग्निफिकेंट लोगों के अंदर पड़ी हो और आप उसे पूरी बॉडी में फील करें, और जब ये पूरी तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा आपका विजुअलाइजेशन सकारात्मक रिजल्ट देगा और बहुत जल्दी देगा। जी, यानी वीडियो, ऑडियो और फीलिंग तीनों चीज़ें इकट्ठा होती है और एनएलपी वर्क करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल खुद सोचेंगे कि आपके पास एक दीवार है, 1 फीट चौड़ी दीवार है, दोनों तरफ खाई है जी। आप उस दीवार पर और उधर 100 रुपए रखे हैं जी, और ये 50 फीट लंबी दीवार है जी, तो आप 100 रुपए के लिए कोई फीलिंग नहीं बनी, क्योंकि आपको जीवन का पूरा खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ खाई है जी। तो आप वहां नहीं जाएंगे, यद्यपि विजुअल्स आपके हैं कि अब मुझे 100 रुपए दिखाई दे रहे हैं जी। ऑडियो भी हो सकते हैं कि यार चलो ले लेते हैं जी, लेकिन सोचिए कि अगर 50 फीट की दूरी पर वहाँ 100 रुपए नहीं, हमारा बच्चा है, हमारे घर का कोई मेंबर है जी, और वो खतरे में है जी। अब हम सारी ताकत लगा देंगे वहां जाने के लिए। जी। क्यों? क्योंकि इस बार हमारी फीलिंग भी बनी है। ओके। गड़बड़ ये हो गई है हमारे साथ कि जो लक्ष्य लोग बना रहे हैं जी, उनकी फीलिंग वहां पर नहीं है। जी। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 91% कैसे ले, उसकी अगर फीलिंग ही नहीं है उसके पास, वो क्यों ले? क्यों? अगर उसके पास नहीं है, क्यों नहीं है? एक आदमी ये कहता है कि मैं इस बार 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं और वो क्यों बहुत कमजोर है, वो फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो वो बीच में रुक जाएगा। कभी ये कहेगा जी आज बरसात हो रही है, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे से लोगों से नहीं मिला जाता, उसकी एक्सक्यूजेस सामने आ जाएंगे, बहाने सामने आ जाएंगे, बिकॉज फीलिंग नहीं है जी। तो याद रखिएगा जब भी आप किसी भी माइंड की टेक्निक को अपनाएं तो इस फीलिंग को कभी मत भूलिएगा। रियल लर्निंग इज फीलिंग, ये पुरानी कहावत है। जो वास्तविक लर्निंग है आपके मन की वो फीलिंग है, और जब भी आपका जो चेतन मन है, जो घुड़सवार है जी, वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स को देगा, और अर्ध चेतन मन वो सिर्फ फीलिंग्स को पकड़कर आपको परमिट करेगा कि आप जाइए उधर, हाँ, और लाइए उस चीज को पूरा करके जी, अगर वो परमिट नहीं, उसने परमिशन नहीं दी, उसने आपको आज्ञा नहीं दी, तो आप रुके रहेंगे। सही है जी। आपने जैसे बताया कि एक्सक्यूजेज आना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई एक आदमी रहता है तो कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स अटेंड करता है, कभी कभी वीडियोस यूट्यूब पर देख लेता है, तो कभी कभार ऐसा होता है पूरे एक दिन के लिए वो जोश में आ जाता है, कुछ भी कर सकता है ऐसा मान के वो आगे चलता है। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन ली हो। दूसरे तीसरे दिन से वो रूटीन हो जाता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक सेल्स पर्सन को, बड़ी एक कॉरपोरेट हाउस है, सेल्स टीम को मोटिवेट किया गया है कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एक असफलता मिलती है छोटी सी और वो बेचारा बेचैन परेशान हो जाता है। तो छोटी छोटी जब परेशानियां आती है तो मोटिवेशन कहाँ चला जाता है? ये बड़ी चुभने वाली बात है। मगर जब मोटिवेशन की बात आती है तो मोटिवेट तो हो गया, मगर 2 दिन के लिए, उसका क्या मतलब? बिल्कुल, इसका बहुत सिंपल और बहुत ही कारगर सवाल आपने पूछा। ये एक बहुत बड़ी खास बात है लोगों की, वो मोटिवेट तो रहते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं रहते जी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक मॉडल शेयर करूंगा जी। ये मॉडल मानव वैज्ञानिकों ने बनाया है और इसे एनएलपी ने पूरी तरह से अपनाया है जी। और ये मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग इससे बहुत अपना लाभ उठा चुके हैं और यही मॉडल मैं आप यहाँ भी देना चाहता हूँ जी। याद रखिएगा, दो आपके माइंड के अंदर 2 लेवल हैं। एक है रिएक्टिव माइंड, जहाँ पर रिएक्ट करता है, वो मेरे पीछे शेर दौड़ा हुआ है, अब मैं मोटिवेटेड हूँ कि जान बचाऊँ, और मैं नई नई क्रिएटिविटी भी लगा लूँगा कि कभी पेड़ पे चढ़ूंगा, कभी पानी में कूदूंगा, कभी उसे आग से डराऊंगा, राइट। और दूसरा ये रिएक्टिव जोन है, ये रिएक्टिव माइंड है, मतलब मुझे रिएक्ट करना पड़ रहा है। एक है प्रोएक्टिव, कि आपका माइंड पहले से ही प्रोएक्टिव मीन्स वो एक्टिव हो जाए और वो हमेशा मोटिवेटेड रहे। यहाँ पर आपको मैं प्रोएक्टिव यानी कि कंप्लीट मोटिवेशन का एक मॉडल सिखाता हूँ। आपके पास 4 चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। न्यूरो, वंस अगेन एक बार फिर, न्यूरो का मतलब है मस्तिष्क, हमारा मन के अंदर कुछ एक लॉजिक्स यानी कि कुछ एक रीजनिंग के लेवल्स पड़े हैं, उनका अलाइनमेंट, उनमें कितनी एक रूपता है। आप ये समझिए कि आपकी कार कब माइलेज अच्छा देगी। आपके पास कार के सभी पार्ट्स अच्छे हैं, नए हैं, पर वो एक दूसरे के साथ एक रूपता में नहीं है। आप दाहिनी तरफ स्टीयरिंग घुमाते हैं, वो बाईं तरफ घूम जाती है। आप ब्रेक लगाते हैं तो दौड़ पड़ती है, आप क्लच दबाते हैं तो पीछे चली जाती है। क्या इस कार को आप प्रयोग कर पाएंगे? कभी नहीं।
इसका मतलब सिंपली है कि आपके मन के अंदर जितने भी लेवल या पार्ट्स पड़े हैं, क्या वो एक रूपता में, या उन्हें एक रूपता में अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो विभिन्न रूपताओं में है और वो भिन्न रूपों की वजह से एक दूसरे को खींच रहे हैं। इनमें 4 जगह पर आपको काम करना होगा। पहला है आपका बिलीफ सिस्टम, यानी कि आपके यकीन, आपकी आस्थाएं, आपके विश्वास। पैसे के लिए आपका क्या यकीन है? कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा पैसा आपको नुकसान देगा, ज़्यादा पैसे आने से खतरा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसा आने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसा उतना ही आना चाहिए जितने की ज़रूरत है, कहीं ऐसे यकीन तो नहीं है? अगर ऐसे यकीन है और फिर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपका मोटिवेशन नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि आपके आंतरिक संवाद ही आपके अगेंस्ट जाएंगे। दूसरी चीज़ है बिलीफ के साथ साथ, और ये बिलीफ सेहत के लिए भी हो सकते हैं। आपको पहले से ही पता है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, ये कुछ लोगों ने बताया हुआ है, आपने अखबारों में पढ़ा हुआ है, और डॉक्टर ने कहा है कि आज डायबिटीज़ होगी तो सबसे पहले आपका अवचेतन मन क्या कहेगा, ये तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको बता रखा है। आपके यकीन आपको पीछे ले जाते हैं कई बार। या फिर आपने कहा कि यार मेरे रिलेटिव्स में से या मेरे आसपास के लोगों में से कोई भी सफल नहीं हुआ तो मैं भी नहीं होऊंगा, यानी कि पास्ट के यकीन आपकी माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है वैल्यूज़, इसे मूल्य कहते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए खास क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? अगर आपके माइंड को यही नहीं पता मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है तो वो पाएगा कैसे? जिन लोगों को ये मालूम है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अगर उसे ये पता चल जाए तो वो हमेशा उसको पाएगा। सो दूसरी चीज़ है आपका लेवल, कि आप अपने लिए ये तय करें कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। आपका महत्वपूर्ण होना प्लस उसका आपका यकीन। मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, पर पैसे के लिए मेरे बिलीफ गड़बड़ है, मेरे यकीन गड़बड़ है, मेरी सोच गड़बड़ है, तो इन दोनों में अभी भी एक रूपता नहीं है। तीसरी चीज़ इसके ऊपर भी, वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पहचान। आंतरिक रूप से आप अपने आप को क्या मानते हैं? जब आप दवाई खाते हैं उस वक्त आप अपने आप को क्या मानते हैं? एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप उस समय आप एक बीमार समझकर खुद को दवाई खा रहे हैं तो उस वक्त आपकी पहचान आपकी बीमार व्यक्ति की है, या फिर आप ठीक होने वाले व्यक्ति हैं, ये पहचान है। जब आप जिम में जाते हैं कसरत करने, उस वक्त आप मोटे हैं या आप अनहेल्दी हैं इसलिए वहाँ जा रहे हैं, या आप एक स्वस्थ बनने वाले इंसान हैं इसलिए वहाँ जा रहे हैं? जब आप पैसा कमाते हैं तो आप पुअर या कंगाल व्यक्ति की छवि रखते हैं आंतरिक रूप से, या एक रिच आदमी की छवि रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चा पढ़ रहा है उस टाइम उसकी छवि क्या है? वो एक सफल विद्यार्थी की तरह अपने आप को देख रहा है, या एक नॉर्मल विद्यार्थी की तरह देख रहा है, एक संघर्षकर्ता की तरह देख रहा है? इसका मतलब ये है कि जब अगर मैं अपनी छवि ये बना लूँ कि मैं तो कंगाल हूँ, चलो मैं मेहनत करता हूँ, तो मेरी ये छवि मेरी वैल्यूज़ को पूरा नहीं कर रही है, मेरे यकीन गड़बड़ हो जाएंगे। अब इसका मतलब है कि 3 चीज़ हो गई, आपकी यकीन, आपकी सोच, आपके मूल्य और आपकी पहचान। तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। अब चौथी चीज़ भी है, आपका उद्देश्य क्या है? आप क्यों कमाना चाहते हैं पैसा? क्या करेंगे पैसा कमा के? अगर ये आ गया, आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ आ गई, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो आपको यूनिक महसूस कराए? आपने कार खरीद लिया, आपने मकान बना लिया, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने ज्वेलरी ले ली, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर उसके बाद भी आपको नहीं पता क्या करेंगे तो ये माइंड के लिए एक एंग्जाइटी दे सकता है और वो आपको एक बड़ी सफलता से रोक सकता है। याद रखिएगा, जितने भी लोग बड़ी सफलता लेकर चलते हैं वो हमेशा एक चीज़ करते हैं कि अपने रिसोर्सेज से, अपने साधनों से वो योगदान की तरफ जाते हैं। तो योगदान की भावना आपका पर्पज़ है, पहचान आपकी आइडेंटिटी है, वैल्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके यकीन क्या है उस चीज़ के लिए। इन चारों में अगर आप एक रूपता कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी कार यानी कि आप खुद एक अनलिमिटेड सक्सेस की तरफ जाएंगे। कभी भी इसे आप कर सकते हैं। एनएलपी की एक विशेष टेक्निक है जिसे मैं लोगों को कराता हूं, और मैं कई बार आप मेरी वेबसाइट पर जा देखेंगे या फेसबुक के फ़ोटो पे देखेंगे तो लोग खड़े होते हैं, वो आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं और एक पूरा अलाइनमेंट निकाला जाता है, कहीं कोई क्वेश्चन तो बाकी नहीं है। इसीलिए मोटिवेशन नहीं रहता, क्योंकि हमें अपने ही अंदर छुपे हुए डिफरेंट पार्ट्स को सेटिस्फाई करना नहीं आता, संतुष्ट करना नहीं आता। छोटा सा सवाल मन में उठता है, क्या एनएलपी के जरिए जो आदमी पाना चाहे वो पा सकता है? बिल्कुल। इसके लिए मैं कहूँगा कि आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं। एनएलपी का एक यकीन है, एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है, एनएलपी की एक सोच है और उस सोच का नाम है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये समझिए कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, पर आज आप अपने लॉकर का नंबर या कोड भूल चुके हैं, या आपका जो पैसा रखा है आपको ये नहीं पता है कि घर में किस रूम में किस ड्रॉयर में रखा है, तो उस वक्त आप कंगाल के कंगाल हैं।
और आप चिल्ला रहे हैं कि मैं कंगाल हूँ। नहीं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, याद रखिएगा। और ये तय भी हो चुका है, परिस्थितियों ने लोगों को नहीं रोका। बहुत सारे लोग हैं जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं रही, वो आगे बढ़ गए। उन लोगों की सोच अलग थी, उनके पास एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी, उनके शरीर भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ थी। उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि वो अपने रिसोर्सेज तो, वो अपने संसाधनों को जो उनके अंदर थे उनका पूरा तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। आलस को, कभी डिप्रेशन को, कभी एंगर को, कभी स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जो उनके पॉजिटिव रिसोर्सेज थे कि वो खुश रहें, वो कॉन्संट्रेशन में रहें, वो लोगों चीज़ों के प्रति फ्लेक्सिबल रहें, अपने आप को विक्टर सोचें, अपनी सोच बनाएं कि जीवन उनके लिए बदलेगा। अपनी सोच उन्होंने बनाए रखी कि लोग उनकी सहायता करेगी, उनकी सोच बनाए रखी कि उनके पास पैसा आएगा। उन्होंने अपनी पहचान को बदल कर रखा कि मैं एक विक्टर हूँ, मैं एक ट्रांसफॉर्मर हूँ, मैं एक बदलाव करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक खुशी को जनरेट करने वाला व्यक्ति हूँ, या मैं एक गाइड हूँ लोगों का। और उन्होंने जीवन को हमेशा एक नए स्तर पर ले जाने के लिए योगदान की भावना भी रखी है। इन चारों चीज़ों में जितना भी सिंक्रोनाइजेशन यानी कि एक रूपता होगी, आप अपने रिसोर्सेज का, आप अपने संसाधनों का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने बताया कि जो आदमी सोचता है वो बन सकता है। पहले हमने एक तकनीक भी स्टूडेंट्स के लिए दी, अब बिजनेस के लिए भी एनएलपी कराते हो बिजनेस पर्सन्स को। तो जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे, आपने पहले ही शुरू में एक बात की, जिसकी एक फैक्ट्री वो दूसरी फैक्ट्री की बात सोच सकता है। तो बिजनेस एनएलपी क्या है और उससे क्या मनचाही सफलता मिल सकती है? बिल्कुल जी, एनएलपी की जब शुरुआत हुई थी तो वो बिजनेस मैन के लिए भी हुई थी, स्पोर्ट्समैन के लिए हुई थी, इसीलिए हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। बिजनेसमैन के पास भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई। नंबर एक, उनके पास पास्ट का अनुभव पड़ा है कि यार चीज़ें ठीक नहीं हुई, कोई पास्ट का लॉस हो सकता है, उस लॉस की वजह से आपका एक यकीन बन गया कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। इस यकीन को कभी भी आप बदल सकते हैं। नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं। हाँ, मुझे अभी आपसे ने कहा है कि एक टेक्निक को बताइए, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा, इस टेक्निक का नाम एंकरिंग है। एंकरिंग एक तरह की कला है कि किस तरह से आप अपने टारगेट को, आप अपने लक्ष्यों को बढ़ाकर अपने अवचेतन मन को उन लक्ष्यों के लिए तैयार कर लें। एक नए तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लेते हैं आप एक साल में 50 लाख रुपया कमाते हैं, तो अब आपका मन 50 लाख के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल है। उसे मालूम है कि आप 50 लाख तो कमा ही रहे हैं। इन फीलिंग्स को लीजिएगा और अपने कंधों को सीधा करके बैठिएगा। अपने आप को कहीं से भी अपने हाथ से, फॉर एग्जांपल अपने हाथ से इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए पकड़िएगा। आप देखेंगे कि अब आपकी फीलिंग्स, कंधों को अगर आप सीधा रखेंगे, सांस को आप पूरी तरह से मेंटेन रखेंगे और आप इसको टच करेंगे, तो वो फीलिंग आपकी बनी रहेगी। जब आपकी फीलिंग्स ये है कि मैं सर्टेन हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने अपनी निश्चितता की फीलिंग्स को बरकरार रखा कि मैं निश्चिंत हूँ इस चीज़ के लिए, पक्की बात है कि इतना तो आ ही रहा है 50 लाख, और अब आप बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अब आप धीरे धीरे बढ़ाइए कि अगर मैं अपने टारगेट को इस साल 1 करोड़ करूं, तो इन फीलिंग्स को बनाए रखिएगा और 1 करोड़ का टारगेट बनाइएगा। अगर फीलिंग्स बदल रही हैं 1 करोड़ पर, तो समझ लीजिएगा आपका अवचेतन मन या आपका अर्ध चेतन मन आपको अभी अलाउ नहीं कर रहा है, परमिट नहीं कर रहा है। फिर आप धीरे धीरे क्या करें, फिर 50 लाख पर लाइए, अपनी फीलिंग्स को एक रंग भी सोचिए, इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए आराम से कंधों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे बढ़िए। ओके, 50 की जगह 60, अगर मैं 60 लाख कमाऊँ तो क्या मेरी फीलिंग वही है? अगर फीलिंग वही है तो आपका 60 लाख रुपए तक भी आपका अर्ध चेतन मन ट्रेंड हो चुका है। फिर थोड़ा गैप लीजिए, इसको फिर 60 लाख पर लाकर रोकिए, फिर 70 करिए, 75 करिए, और इसे एक टेक्निक को पूरी तरह से करिए। जब आपका इंटरनल डायलॉग या इंटरनल ड्रामा पूरा होगा, तभी आपको आपका अर्ध चेतन मन बाहरी दुनिया में परमिट करेगा, अलाउ करेगा, आज्ञा देगा कि बाहरी दुनिया से भी वो जुड़िए। याद रखिएगा, जिस मकान में आप बैठे हैं सबसे पहले वो आपके मन में बना था, मस्तिष्क में बना था, उसके बाद वो बाहरी दुनिया में बना था। तो जब भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहें, तो आप अपने लक्ष्यों को पहले इंटरनल ड्रामा में कंफर्म कर लें, पूरी तरह से निश्चित कर लें। अगर वो निश्चित नहीं है तो ये बात पक्की है कि किसी न किसी दिन आपका मोटिवेशन गायब हो जाएगा। वो लोग आपके सामने से गुजर जाएंगे जो लोग आपको उस लेवल तक ले जा सकते थे, वो अवसर आपकी निगाहों के आगे से निकल जाएंगे जो अवसर आपको करोड़पति बना सकते थे। इसलिए नहीं कि वो अवसर वहाँ नहीं थे, असलियत में गड़बड़ ये हुई कि आपका अचेतन मन उन्हें देखने के लिए बना ही नहीं था। इसलिए सबसे पहले इंटरनल जो है
अर्ध चेतन मन को बताइए कि आपको कहाँ जाना है। अगर वो परमिट कर रहा है तो समझ लीजिए आपकी जर्नी, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। जी, बिजनेस पर्सन के लिए भी आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो प्रोग्राम काफ़ी छोटा होता है, वरना तो हम बिजनेस पर्सन्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अलग से कर देते, मगर काफ़ी चीज़ें, हमारे दर्शक भी काफ़ी चीज़ें आपसे सुनना पसंद करेंगे। और कई लोग बीमार होते हैं, आप बीमार लोगों के लिए भी NLP करते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है कि जिनसे छुटकारा लेने में उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से वो उससे छुटकारा मिल सकता है उन लोगों को? ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया आज हम, जहाँ हमारा देश में स्वास्थ्य और खुशियाँ खूब थी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि स्वास्थ्य की और खुशियों की नदियाँ बहा करती थी हमारे देश में। आज वहीं पर हम मोटापे के, डायबिटीज़ के तो हम वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं, कैंसर के वर्ल्ड कैपिटल बन गए हैं, अर्थराइटिस खूब हो रही है हमारी घरों में, गृहिणियों में माइग्रेन का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी में पेन आने लगते हैं। याद रखिएगा ये सारी की सारी साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। साइकोसोमेटिक को समझिएगा, यहाँ पर दो शब्द हैं, साइको और सोमेटिक। साइको का मतलब है हमारा मस्तिष्क, यानी कि जितनी भी बीमारियाँ हमारी हैं वो हमारे मस्तिष्क से शुरू होती हैं। और सोमेटिक में पहला वर्ड आता है सोमा। सोमा का मतलब होता है हमारा मानव शरीर, यानी कि साइकोसोमेटिक का मतलब है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे साइको यानी कि माइंड से शुरू होती हैं और वो हमारे शरीर में दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें गंगा को साफ़ करना है तो दो तरीके हैं। एक कि गंगा में जहाँ जहाँ कूड़ा है वहाँ भी सफाई करिए, उसके लिए आपके पास आयुर्वेदा है, अच्छी दवाइयाँ हैं और योगा भी है, मेडिटेशन भी है। लेकिन उसके परे आपको एक काम और भी करना होगा कि आपको अपनी गंगोत्री को भी साफ़ करना होगा। अगर गंगोत्री में ही गार्बेज है तो आप कितने जाल लगाएंगे साफ़ करने के लिए गंगा को, पटना में, बनारस में या फिर कानपुर में, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी गंदगी है। तो अगर गंगोत्री को साफ़ नहीं किया गया, और गंगोत्री में 3 ही जगह पर है, एक उनके पास या तो पास्ट की प्रॉब्लम है, जितने भी बीमार लोग मिलेंगे उनके पास एक समय में असीमित तनाव रहा है, उनके जीवन से या तो कोई मनुष्य चला गया है उनको, या कोई नौकरी की प्रॉब्लम रही है, पैसे की प्रॉब्लम रही है, रिश्तों की प्रॉब्लम रही है, जहाँ से चीज़ें आई हैं उस गार्बेज को वहाँ से हटाना होगा। NLP इसमें आपकी सहायता करेगी। मेरी कुछ वीडियो भी पड़ी हुई हैं जिसमें मैं दिखाता हूँ कि पास्ट की कैसे मेमोरी को हटाया जाए, ये मैं सिखाता हूँ अपने प्रोग्राम से, 5 दिन के प्रोग्राम में। दूसरी चीज़ है कि इनर सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा। जितनी भी आंतरिक छवि आपकी बड़ी होगी, जो 9 साल की उम्र तक हमारी छवि खत्म हो जाती है, हमारे बच्चों की छवियाँ खत्म हो जाती हैं, खुद की मानस पटल पर जो छवि होती है उसे ठीक करना होगा। और तीसरा होगा कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट देखें। इसके लिए मैं तीनों तो नहीं बता सकता हूँ समय की कमी के कारण, पर मेरा मन करता है कि मैं तीनों को ही बताऊँ, पर एक तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, वो हमेशा अपने फ्यूचर को कभी भी ब्राइट नहीं देखते हैं। इसके लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करिएगा सब लोग, और आप देखेंगे कि आपकी दवाइयाँ या आपका जो ट्रीटमेंट है या आपकी जो डिजीज़ है कितनी तेज़ी से हील होना शुरू हो गई है। इमेजिन करिएगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं और 2000 यहाँ से आप अपने सीधे नाक की सीध में अपनी जीवन रेखा को देखिए, ये आपकी भविष्य रेखा है। इमेजिन करिए इसका गोल्डन कलर है और ये आपको कम से कम 5 से 7 मील लंबी दिखाई दे रही है। इस गोल्डन कलर को बढ़ाइएगा और इमेजिन करिए यहाँ से आपको डिफरेंट माइलस्टोन दिखाई दे रहे हैं, मील के पत्थर। इमेजिन करिए कि थोड़ी दूरी पर आपको 2020 का मील का पत्थर दिखाई दे रहा है। इमेजिन करिए कि आप कल्पना में कंधों को सीधा रखते हुए 2020 के मील के पत्थर के पास जा रहे हैं और वहाँ पर देखिए कि जो भी आपकी बीमारी थी, जो आज बीमारी है, वो वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मान लेते हैं आपको कहीं दर्द रहता है तो वो दर्द नहीं है। मान लेते हैं आपको कोई किसी जगह पर कोई पार्ट खराब है या वो बीमार है, तो वो पार्ट, वो अंग वहाँ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इमेजिन करिए 2020 में आप पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इन छवियों को बड़ा करिए। इतना ही नहीं है, अगर आप स्वस्थ जीवन जिएंगे तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? कौन लोग होंगे जो उसको आपको आपकी प्रशंसा करेंगे? उनकी आवाज़ों को सुनिए। आपके बच्चे आपके लिए कह रहे हैं कि यू आर माई हीरो। आपके पेरेंट्स खुश हैं, उनकी खुशी को जाहिर एंजॉय करिए। इतना भी नहीं, यहाँ पर एक पर्पज़ में निकालिए। 2020 में आप स्वस्थ होकर प्रशंसाओं को सुनकर ऐसा क्या करेंगे जो आपको यूनिक महसूस कराए, जो महसूस करा दे कि आप बहुत ही यूनिक इंसान हैं। मतलब 2020 को कैसे एंजॉय करेंगे, उन सेलिब्रेशन को देखिएगा। इसे बैठकर कम से कम आधे घंटे की पिक्चर बनाइएगा।
खूब आधे घंटे तक बढ़िया पिक्चर बनाइएगा। इन विजुअल्स को गाढ़ा बनाइए, कलरफुल बनाइए, बड़ा बनाइए और एक रियलिटी, वास्तविकता क्रिएट करिए अपने माइंड के लिए कि ये मेरे साथ 2020 में हो रहा है। इसी तरह से एक कदम बढ़ाकर 2025, 30 और वहाँ तक जाइए जहाँ तक आप 100 साल तक अपने आप को देख रहे हैं, 2-3 जनरेशन तक अपने आप को देखिएगा। इस टाइम लाइन पर आप बार बार चलिए, 10 बार, 20 बार, हर बार अच्छे अच्छे कलर्स देखिएगा, बढ़िया प्रशंसा सुनिएगा, अपने आप को अच्छे काम करते हुए देखिएगा और आज से ही आपका माइंड एक बार शुरू हो जाएगा कि जब वो 2016 से 2020 की तरफ जा रहा है, यानी कि वर्तमान से फ्यूचर की तरफ जा रहा है, तो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ पाएगा। अपने आप को यूनिक बनाइए वहाँ पर। इस तकनीक को करके देखिएगा, आपका डिप्रेशन, आपका तनाव, आपकी एंग्जाइटी, पास्ट के आपके गुस्से खत्म हो जाएंगे। जी सर, अभी हमने बात की कि डायबिटीज़ में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, कैंसर में भी बनता जा रहा है और काफ़ी ऐसी है, लोगों का जो खाना है वो बदल गया है और इसके साथ साथ कई बीमारियां हैं वो गर करने लगी हैं। लोग इनफर्टिलिटी के भी शिकार होने जा रहे हैं, तो काफ़ी अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं जब वो रोगिष्ठ होते हैं। तो आपने स्पेशली डायबिटिक पर्सन्स उनके लिए और मोटापे को दूर करने के लिए भी काफ़ी NLP प्रोग्रामिंग्स करवाए हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं? हाँ, अभी उसके लिए मैंने एक मिशन के साथ मैं जुड़ा हूँ, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट बेहतरीन कॉम्बिनेशंस वो लेकर आए हैं, फूड कॉम्बिनेशंस या आयुर्वेदा कॉम्बिनेशंस, और उनके साथ हमने पहली बार ये देखा है कि हम अगर सिर्फ शरीर को ट्रीट करें तो ये काफ़ी नहीं है। ये तो वैसा ही हुआ कि गंगोत्री से तो कूड़ा निकल रहा है और हमने जाल लगा दिया बनारस में और गंगा को साफ करने की बात करने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो जब भी हमारी डायबिटीज़ शुरू होती है, डायबिटीज़ 2 शुरू होती है, तो वो असीमित तनाव हमारा माइंड ले रहा होता है और उसी का नतीजा होता है कि हमारी जो तनाव की वजह से हमारी जो फीलिंग्स हमारी मसल्स में जाती हैं, वो तनाव की फीलिंग्स हमारी मसल्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं और वो जो पड़ी हुई हमारी शुगर है जो मसल्स के लिए बनी हुई है, वहाँ पर इंसुलिन भी है, हमारी मसल्स उस शुगर को डाइजेस्ट नहीं करती, खाती नहीं है और भूखा रहती है। इसे हम शुगर कहते हैं। डायबिटीज़ 2 में आप देखेंगे एक खास बात मिलती है कि आपके ब्लड में इंसुलिन भी है, शुगर भी है और आपकी मसल्स खाने के लिए तैयार भी हैं, पर वो खा नहीं रही हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिएगा। मेरे सामने आपने खाना रख दिया, ये मेरे लिए शुगर है, अगर मैं एक मसल हूँ, मेरे परोसने वाला भी वही है, ये इंसुलिन है, खाना बनाने वाला भी है, ये मेरा पैनक्रियाज है, रसोईया है। लेकिन आपने क्या किया कि मेरे सर के ऊपर एक आपने 500 किलो का पत्थर बांध दिया है, जो चेन से बंधा हुआ, और एक चेन टूट भी गई है। अब मेरा दिमाग खाने पे रहेगा कि पत्थर पर रहेगा? निश्चित रूप से पत्थर पर रहेगा। तो ये तनाव मेरे सर के ऊपर अगर चल रहा है तो मुझे कहाँ खाना खाने देगा जी। और ऐसे में क्या करते हैं, तो शरीर की जो मसल्स हैं वो उस समय के पड़ी हुई जो उसकी ज़रूरत है उस खाने को ही नहीं खाती है। इसे हम डायबिटीज़ 2 कहते हैं। अगर उस तनाव को आप हटा लें और जो नुकसान हुआ है उसे आप आयुर्वेदा से ठीक करें तो आप बहुत बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। मोटापा भी याद रखिएगा, जब किसी भी आदमी की सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ती है, यानी कि मध्य में से उसका अंग बढ़ता है, इसे हम इसको हम सिंड्रोम एक्स कहते हैं। अगर आप इसे आज भी गूगल करें, सिंड्रोम एक्स, यहीं से शुरुआत होती है हमारे मोटापे की। इसके बाद शुरू होता है ब्लड प्रेशर, इसी के साथ शुरू होता है शुगर, और इसी के साथ शुरू होती है हार्ट डिजीज़, और उसके बाद 5वीं चीज़ शुरू होती है वो है अर्थराइटिस। अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हो तो आप पाएंगे कि जो हमारी सेंट्रल ओबेसिटी है वो खाने की वजह से नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे पतले व्यक्ति हम उन लोगों से ज़्यादा खाते हैं जो ओबीज हैं, पर वो मोटे नहीं होते। उसका बड़ा कारण यही पाया गया है कि उनके पास असीमित तनाव है, कोई ना कोई पास्ट का इशू है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। और मैंने इस मिशन को शुरू किया, मैं डायबिटीज़ के लोगों के लिए और ओबेसिटी के लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेवाएं दे रहा हूं कि वो अपनी दवाइयों के साथ आयुर्वेदा की, मेरी NLP की टेक्निक्स को भी दें, और ये टेक्निक्स हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अगले 12 महीनों तक के लिए, ताकि लोग अपने तनाव से बाहर आएँ, पास्ट की मेमोरी को हटाएँ, फ्यूचर को ब्राइट देखें, अपने यकीन, अपनी पहचान को बदलें, अपने वैल्यूज़ को क्रिएट करें, पर्पज़ को ढूंढें और मज़ा लें जीवन का। जी, कल से सूरत में आपकी 5 दिन की वर्कशॉप चल रही है, बड़ी लंबी वर्कशॉप है। 5 दिन की वर्कशॉप में आप क्या क्या करवाते हैं? आप ये समझिए 5 दिन की वर्कशॉप में एक कंप्लीट आपके माइंड का ओवरहॉलिंग हो जाएगी, कंप्लीट सर्विस हो जाएगी। आपके पास्ट के इशू
आपके नहीं रहेंगे जी वो आप गार्बेज में डाल कर जाएंगे। जी मैं आपके पास्ट में जितने भी पड़े हुए ओसीडी ऑब्सेसिव बिहेवियर पड़े हुए हैं, एंगर पड़ा हुआ है, डिप्रेशन पड़ा हुआ है, वहाँ से निकलना ज़रूरी है। आपके अगर आपका पैर बंधा हुआ है किसी चेन से तो आप कभी भी फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते। आप इन 5 दिनों में पास्ट को अपने पूरी तरह से क्लियर करेंगे, फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। इतना ही नहीं, एक चैप्टर आएगा जिसमें न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट आएगा, जो 7 कदम में आगे चला के दिखाऊंगा, 7 कदम पीछे, और आप पूरी तरह से आप अपने लक्ष्यों के लिए अलाइंड हो जाएंगे। जो भी आपके लक्ष्य हैं उन्हें क्यों नहीं वो अचीव किए, उनके लिए 9 चेक पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों कोई भी लक्ष्य क्यों पूरा नहीं किया आपने। इवन मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे वो एक काउंसलर की तरह काम कर सकते हैं। वो आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानते कि आप बिजनेस क्या करते हैं, फिर भी वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि कहाँ आप बिजनेस में गड़बड़ कर रहे हैं, आपकी पहचान बिजनेस के लिए बनी है नहीं बनी है, आपको कोई आंतरिक द्वंद्व तो नहीं चल रहा उस बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस आपका लक्ष्य है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इस वर्ड को भी एनएलपी नए तरीके से लेगा। उसके एविडेंस क्या है कि जब आप अपनी तरफ बढ़ रहे हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि सही तरीके से बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आप को नई चीज़ों के लिए एंकर करेंगे, ट्रिगर करेंगे कि आपने चुटकी बजाई और सडनली आपको वो स्टेट मिल गई, वो दशा मिल गई मन की जो आपको चाहिए। आपके पास खराब स्टेट पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको हटाना होगा, उनको हटाना सिखाया जाएगा। कैसे रैपो एस्टेब्लिश करें, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के साथ आप अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, क्लाइंट अच्छे जोड़ना चाहते हैं और आपको यही नहीं मालूम कि तालमेल कैसे जोड़ा जाए, तो एक टेक्निक मैं बताऊंगा कि तालमेल 90 सेकंड में आप कैसे किसी के दिमाग में ये तय कर दें कि आप एक बहुत अच्छे ट्रस्टवर्दी इंसान हैं और वो आपके साथ एक नए तरीके से जुड़े। एक तकनीक मैं सिखाऊंगा कि कैसे लोगों को आप हिप्नोटिक लैंग्वेज बोलें ताकि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएं। कैसे लोग अगर आपको हिप्नोटाइज कर रहे हो तो कैसे बचें उनसे। समाज में लोग अगर आपको हिप्नोटाइज करके कोई कमांड दे रहे हैं बेकार की, उसे कैसे बचें। मैं एक तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप किस तरह से आप अपने गुस्से की आंतरिक बनी हुई जो रणनीति है, गुस्सा किस तरह से करता है माइंड, उस रणनीति को तोड़ लें। चिंता की एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पड़ी होती है, चिंता कैसे है और चिंता से आशा में कैसे बदल लें। तो एक करीब 16 चैप्टर को मैं कल से 5 दिन के लिए कर रहा हूँ। हाँ, सीमित स्थान होते हैं इसमें, 30 लोगों से ज़्यादा मैं नहीं देता हूँ। अभी ये कल से सूरत में है, उसके बाद ये बड़ौदा में भी है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलोर, कैलकाटा, और करीब मैं हर महीने 2 यही प्रोग्राम देता हूँ। 5 दिन का आपने लंबा जरूर कहा, पर मैं तो ये कहूँगा 5 दिन वर्सेस 50 साल अगर आप सोचें और 50 साल को बेहतर बनाने के लिए देखें तो 5 दिन कुछ भी नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट है। बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट। जी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को आपने दी और सब दर्शक अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे और आपको बार बार देखना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए तो इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ और आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।